Good morning, students. Welcome to subject biology for class 9th. Your biology teacher, Mrs. Ruxana Michael, is here. First of all, we see the definition of biology. So, if we see the biology, it is the word which is derived from Greek words. Bios means life and logos means study. So it means it is a study of life. ये स्टडी है जिंदा चीज़ों की या हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स की. So if we see the definition, biology is a branch of science that deals with the structure, function, growth, evolution and distribution of living organism. हम इसमें देखते हैं कि if we see structure, कि structure क्या है? If it is plant, it has root, stem, leaves, flowers. So all these are come in the structure. हम ये किस में डिस्कस करते हैं? इन बायोलॉजी. इसके अलावा फंक्शन. फंक्शन मीन्स व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीफ, हाउ दे ग्रो, लीफ कैसे ग्रो कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हाउ रूट्स ग्रो एंड वेयर दे गो. यू नो दैट रूट्स आर अंडर द सॉइल, so they grow in the soil. And if we see stem grow above the soil. Now come to evolution. Evolution means what changes are coming in the some species. किसी species में changes कैसे आ रही हैं, by not only for 1 or 2 days, for the years how they change. If we see giraffe, so you know that scientists कहते हैं कि जो जिराफ है इसकी जो है नेक जो थी ये पहले इतनी लंबी नहीं थी. So after the years when it was difficult to eat grass एंड ईयर बाय ईयर उसकी गर्दन जो है वो लंबी होती गई. तो ये एक दफ़ा की नहीं, बहुत सालों की. तो डैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट एंड एनिमल. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इसकी सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन है. आफ्टर दिस प्लांट्स they divided into different groups, different you can say phylums. And उसकी तरफ हम आएँ तो एनिमल्स दे डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. सो ऑल दिस वी स्टडी इन बायोलॉजी. तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन and distribution of living organism. Now we see what are the main branches of biology. So if we see, there are 2 main branches of biology. Number 1 is zoology and number 2 is botany. In zoology we study about animals and in botany we study about plants. Now dear students, कम टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. मेन ब्रांचेस तो हमने देखी. अब हम देखेंगे कि और बहुत सी ब्रांचेस हैं, बट वी ओनली डिस्कस हेयर फ्यू ब्रांचेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी नंबर 1 मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स इफ देयर इज़ अ प्लांट, रोज प्लांट, so what type of flower, what type of leaves, what type of root it has, all these are the external structure.
तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बैरूनी जो उसका स्ट्रक्चर है कैसा नज़र आता है, किस तरह का है, वी स्टडी इन morphology. After this, anatomy. Anatomy means the study of internal structure of living organisms. If we see that animal or man, we can see there are different type of organs inside, and what organs are present. Like in us, we have heart, lungs, and kidneys. So that is called anatomy. So internal structure of living organism, उसके अंदर क्या है. Now come to histology. Histology, the study of cells and tissues with the aid of microscope. हमने सेल और टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इनको जो स्टडी करना है अंडर माइक्रोस्कोप, सो इट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. नाउ कम टू सेल बायोलॉजी. Cell biology means the study of structure and function of cells and their organelles. You know, cell is a basic unit. Basic unit है of life, and it has many organelles. इसके अंदर बहुत सारे organelles हैं, different functions हैं उन organelles के, तो it is a basic unit, एक unit है. And these cells they combine and form tissues and after this organs. तो ये स्टडी अगर हमने एक सेल की स्टडी करनी है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है एंड सम ऑर्गेनल्स, वी स्टडी सेल बायोलॉजी. नाउ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में क्या है? द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइक हार्ट, हाउ हार्ट इज वर्किंग, how it is pumping, supplying blood to all parts of the body, and other organs like lungs, how they function. So all these we study in physiology. Now come to number 6, ecology. Ecology क्या है? The study of organisms in relation to each other and their environment. मतलब ये कि एक ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश. तो फिश यू नो दैट इट लिव्स इन वाटर. अब उस इन्वायरमेंट में हम अगर उसे बाहर निकाल देंगे तो इट कैन नॉट बी सर्वाइव्ड. तो हमने ये सब चीज़ें देखनी है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट जो है, हाउ दे रिलेट विद इट्स एनवायरनमेंट, देयर एनवायरनमेंट, तो वो कैसे अपने एनवायरनमेंट में जो है वो उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, उसका रिलेशन क्या है, वी स्टडी इन इकोलॉजी. नाउ कम टू टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और यू कैन से सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. एक जो है एनिमल जो है वो दूसरे से कैसे डिफरेंट है. लाइक इफ वी सी that there is a sponge. Sponge is a, you can say, animal, invertebrate. वो जो है वो दूसरे एनिमल से कैसे डिफरेंट है. लाइक वो किस तरह से जो है, अगर दूसरा एनिमल एक स्पॉन्ज है तो दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास कोई लूकस्ट है, तो वो दोनों आपस में डिफरेंट क्यों हैं, कैसे हैं. और जब साइंटिस्ट ने देखा कि दे आर डिफरेंट, दे कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट यू कैन से फाइला. तो इस तरह से ये सारे काम जो हैं, जो किस में हमने पढ़ने हैं, टेक्सोनॉमी में, कि हमने किस प्लांट को कहाँ रखना है, क्यों रखना है, उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, आपस में कैसे वो रिजेंबल करते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी. नाउ कम टू एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग. तो ज़ाइगोट, विच इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट, एक छोटा सा, जब समझ लें कि सीड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीड कैसे बनेगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि आफ्टर द पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन that embryo will form, and that embryo how it is formed ये हम आगे भी पढ़ेंगे. तो ये एम्ब्रियो जब बनेगा तो इसकी डेवलपमेंट होगी, एंड वो जो है, अगर सीड है, अगर वो किसी प्लांट का
अगर वो जो है मेज़ का सीड है तो इट विल ग्रो एंड इट विल फॉर्म मेज़ प्लांट। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है एम्ब्रियोलॉजी में। नाउ कम टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल of biological inheritance of characters from parents to their offspring. You know, offspring क्या होती है? Offspring means that the new generation. Offspring जो है हम कह सकते हैं कि एक अगर प्लांट है, इफ़ इट इज़ मेज़ प्लांट, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी उसी की तरह होगा। या आप ये कह लें कि देयर इज़ अ कैट एंड किटन ऑल्सो लाइक द कैट, तो डैट इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ कैट। किटन जो है ऑफस्प्रिंग ऑफ कैट है। तो उनके सारे बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो हैं वो कैसे, इनहेरिटेंस मीन उनके अंदर वो सारे करेक्टर्स आ जाना जो कि उनके जो है लाइक कैट में है वो किटन में आ गए। तो डैट इज़ ऑल वी डिस्कस इन which branch? Genetics. Now there is one branch that is called paleontology. अब paleontology क्या है? The body parts of ancient organisms or their impressions preserved in rocks are called fossils. इसमें हमने fossils की studies करनी है, यानी कि animals तो बहुत पहले मर चुके हैं but they have some signs there. उनके फुट के साइन हैं, उनके जो हैं बॉडी पार्ट्स के साइन हैं जो कि उस मड में या रॉक्स में जो हैं वो सेव हो चुके हैं। तो दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। एनिमल्स आर नॉट देयर लाइक डायनासोर्स। डायनासोर्स आर नॉट टुडे बट how we know that dinosaurs were there because of the fossils. उनके fossils से हमें पता चला। तो the study of fossils is called paleontology. Now come to biochemistry. Biochemistry, the study of metabolic reactions taking place in living organisms. Living organisms में जो सारे reactions हो रहे हैं because they are living, इस वजह से हम जो उसकी chemistry पढ़ेंगे that is called biochemistry. Now come to biotechnology. इसकी एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छी देख सकते हैं, कर्ड। यू नो हाउ कर्ड इज़ फॉर्म्ड? इफ़ वी टेक मिल्क एंड टेक सम सॉल्ट लाइक लेमन, हम उसमें लेमन डालेंगे सो मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। सो डैट इज़ ऑल्सो वी कैन से इट इज़ वेयर वी स्टडी ऑल दीज टाइप थिंग्स इन बायोटेक्नोलॉजी. इट डील्स विद द practical application of organism and their component for the welfare of human beings. So biotechnology works for the welfare of human being. इंसान की भलाई के कामों के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। Yes students, now come to contribution of Muslim scientists in the field of biology. अब हम यहाँ देखेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो। और इसमें हमने ये देखना है एंड वी आई डिस्कस्ड हियर वेरी फ्यू साइंटिस्ट एंड यू कैन सी इन योर बुक द अदर साइंटिस्ट ऑल्सो एंड यू कैन स्टडी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं जाबिर बिन हयान। ओके, सो जाबिर बिन हयान पीरियड इज़ 722 टू 817 AD. अच्छा, इन्होंने क्या किया? ही रोट सम बुक्स एंड 2 बुक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, अल नबातात एंड अल हैवान. एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन? ही स्टडीड द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रोट मैनी अदर बुक्स ऑल्सो. ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन ये था, इन्होंने ये बुक्स लिखी और बुक्स लिखने के बाद उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी और मेन इनका टॉपिक क्या था? प्लांट्स एंड एनिमल्स. द अदर साइंटिस्ट इज अब्दुल मालिक अस्माई. अच्छा, इनका काम क्या था? ही रोट बुक्स लाइक अल-खील, अल-बील, अशा, अल-वहूश, अल-खलील, खल्कुल इंसान,
और इनका कंट्रीब्यूशन यही था कि द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हॉर्स, camels, sheep, wild animals and human being in detail. After this, Abu Usman Umar al-Jahiz. So he wrote books. Al-Haywan, contribution क्या है इनका? He explained the characteristics of about 350 species of animals and wrote on the life of ants specially. इसके बाद आ जाते हैं कि अल फाराबी एंड अबुल कासिम अल ज़हरवी. व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन? ही रोट द बुक अल नबातात, अल हैवानात एंड अल फाराबी also written a book. So on the other hand, Al Razi Al Zahrawi was famous for removal the stone from urinary bladder. So he also did this work, that remover of stone from the urinary bladder. Some other scientists also are there, like Ibn al-Haytham. So Ibn al-Haytham wrote books Al-Manazil, Mizanul Hikmah, and contribution was he explained the structure and function of eyes and suggested the cornea as a site of vision. अच्छा, नाउ आ जाते हैं आगे हम बू अली सीना. बू अली सीना ने बुक लिखी दैट इज़ अल कानून फिल तिब अल शिफा. कंट्रीब्यूशन क्या था? ही रोट अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में भी लिखा और उनका रिलेशन लिखा कि प्लांट और एनिमल का रिलेशन नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या है. आफ्टर दिस इब्नुल नफीस, कंट्रीब्यूशन क्या है? ही डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में इन्होंने देखा कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, वेनस सिस्टम है, आर्टीरियल सिस्टम है. हमने इसे आगे पढ़ना है. नाउ कम टू इब्ने अली बिन ईसा. ही वर्कड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ आई एंड अबाउट 130 डिजीजेज ऑफ आई एंड देयर ट्रीटमेंट. नाउ कम टू मॉडर्न पीरियड साइंटिस्ट. अब हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड साइंटिस्ट ने क्या किया. इसमें नाम आता है एक तो विलियम हार्वे का, एंड द पीरियड इज़ 1578 to 1657 AD. कंट्रीब्यूशन, he described the blood circulation in human body. He also described the blood circulation. Now come to other scientists, Carolus Linnaeus, and he contributed, he also gave the system of binomial nomenclature. We will discuss it in chapter number 3, so there you can understand it more clearly. So he is known as father of taxonomy. Like we said taxonomy, we have discussed it, that taxonomy is a branch of biology where we categorize the living things or these animals and plants. Now come to Sheldon and Shawn. Contribution is that they studied the cell of plant, and Shawn studied the cell of animal. They proposed the cell theory. इन्होंने cell theory बनाई. After this आ जाते हैं हमारे पास लुइस पास्चर. So he proved that microbes are found in the air which spoil the food items. इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि लुई पास्चर जो हैं उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है फूड को हम जो है स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. और इन्होंने इसीलिए हम जो आजकल दूध यूज़ करते हैं टेट्रा पैक, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैस्चराइज्ड मिल्क, तो ये लुई पास्चर ने ही बताया. नाउ कम टू एडवर्ड जेनर. Edward Jenner, he invented method of vaccination against smallpox. Smallpox was very serious disease in the past days or past time.
पुराने ज़माने में ये बहुत ही सीरियस बीमारी होती थी और उसके जो है उसके लिए इन्होंने वैक्सीनेशन तैयार की और उससे बहुत लोग मर जाते थे जब तक कि ये वैक्सीनेशन नहीं थी। और आज भी हम ये वैक्सीनेशन जो है बच्चों में जब वो पैदा होते हैं तो वो वैक्सीनेशन उनको लगाई जाती है। नाउ कम टू चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, इसने अपनी एक बुक लिखी एंड ही एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक। अब उस बुक में इन्होंने एवोल्यूशन लिखा कि हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स दे चेंज ईयर्स टू ईयर्स, कैसे चेंज हो गए हैं, किस तरह से उनमें चेंजिंग आई हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, क्यों होता है, और ये सब कुछ जो है चार्ल्स डार्विन ने बताया। वी विल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 17. Now come to Gregor Mendel. Gregor Mendel, he conducted experiments on pea plants. He formulated the laws of inheritance. इसने बताया कि किस तरह से जो है करेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स में इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, या कहना चाहिए कि वो एक स्पीशीज से एक जो उनकी जनरेशन है दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स जाते हैं और वो किस तरह से जाते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया। वी विल ऑल्सो डिस्कस, हम भी इसे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आफ्टर दिस विलियम लॉरेंस एंड विलियम हेनरी, इन्होंने क्या किया? दे डिस्कवर्ड एक्सरे और क्रिस्टलग्राफी to understand the structure of deoxyribonucleic acid, जिसको DNA कहा जाता है। Now come to other scientist, उनका नाम है फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। इन्होंने क्या किया? He discovered the double helix model of DNA। DNA जो कि आप नाम सुना हुआ होगा बहुत ज़्यादा, इसको भी हमने आगे स्टडी करना है। एंड प्रूव दैट DNA इज़ फाउंड इन सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने ये बताया कि जो है DNA जो है इट इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स, हर सेल के अंदर जो है वो DNA मौजूद होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ होम टास्क, आपका जो है काम जो है जो आपने मुझे करके देना है, and this homework you will submit by your parents to the school, and your parents will come here and they submit. You can do this homework on Foodscape sheets, उन पे आप करके तो दे के जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 is define biology and its branches. Number 2, write down names and one contribution of Muslim scientists. Number 3, write the names and one contribution of modern scientists. Okay students, now my message for you is stay home, stay safe. Thank you.